Hello bachcho. So today we are going to start a chapter named atomic structure. In this chapter we will start from first what is the difference between atom and molecule. Atom and molecule. Atom क्या होता है, molecule क्या होता है, उनके बीच में difference क्या है, basic चीज है. उसके बाद we will switch to the next topic, that is different models of atom. In this topic of different models of atom, we will first start from the Thomson model, then we will move to the another one, that is Rutherford model. After that we will do cathode ray experiment, then we will do anode ray experiment. This will complete our, after doing these experiments, we will do some properties or study or comparison with these models. This will complete our chapter. So let's start with the first part, that is the difference between atom and molecule. So when we start, the difference or the first thing about atoms and molecules, you guys know that what is the difference and what is an atom. Everyone knows that what is an atom. Atom क्या होता है? अगर मैं किसी से भी पूछूं तो आप लोग क्या बोलेंगे? Atom is the smallest particle of matter. यही बोलेंगे सब लोग. Is this true? Yeah, it's 90%, it's 80% true, but there is some change or there is some modification in this definition. What we say atom as, if we say that atom is the smallest particle of matter, then what about the molecule? Molecule क्या होगा फिर? Molecule भी हम बोलेंगे smallest particle of matter. फिर difference क्या है दोनों में? इसका हम बोल देते हैं smallest particle of compound बोल देते हैं हम लोग कई बार. फिर difference क्या है? atom और molecule में difference क्या है फिर? क्या कंपाउंड मैटर नहीं है? Then what's the difference? So let me give you a difference between the atom and molecule. Atom, अगर हम पूछेंगे आपसे atom क्या है, तो yes, this is right, smallest particle of matter that doesn't loses its identity throughout the reaction. ये होता है एटम. इन द सेम वे अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? वो चीज या वो मैटर जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल. हम एग्जांपल लेते हैं. यहां पे देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. बेसिक एग्जांपल है, वाटर हर जगह प्रेजेंट होता है. सबसे बेसिक एग्जांपल है केमिस्ट्री का. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2. दिस हाइड्रोजन H2 इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम of hydrogen and 1 atom of oxygen. Here you can see this hydrogen is made up of 2 atom of hydrogen. This hydrogen molecule, this is hydrogen molecule H2. This is molecule, this is molecule. This is hydrogen molecule. This is oxygen molecule. And this is water molecule. So here you can see that this hydrogen molecule is made up of 2 atoms of hydrogen. This oxygen molecule is made up of 2 atoms of oxygen. This water molecule is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Here the identity of atom, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मैं कह रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से बना है और इसका जो प्रोडक्ट है H2O वाटर, ये भी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है इसमें और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है. तो इसका मतलब क्या है कि जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है हमारे एटम की, वो थ्रू आउट द रिएक्शन रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, अगर यहाँ पे ये
हाइड्रोजन का एटम है H2, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ही एटम है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये वाटर का एटम हो गया, नहीं। जबकि अगर हम मॉलिक्यूल की केस में देखते हैं तो यहाँ पे H2 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे O2 क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे H2O क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो दिस इज क्लियर कि जो मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी है वो लूज हो रही है थ्रू आउट द रिएक्शन, लेकिन जो आइडेंटिटी है हमारे एटम की वो सेम है थ्रू आउट द रिएक्शन, एंड दैट इज व्हाट वी हैव written in the definition कि atom is the smallest particle of matter that does not loses its identity throughout the reaction। इसकी आइडेंटिटी, इसका पहचान एटम का किसी भी रिएक्शन के में सेम होगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। while in case of molecule अपनी आइडेंटिटी क्या है, मॉलिक्यूल लूज कर देता है। अगर यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी क्या है, H2O मॉलिक्यूल, तो पहचान क्या हो गई इसकी, लॉस्ट हो गई। So this is the basic difference between atom and molecule। एक और चीज आप लोग नोट कर लीजिए, एटम जो है वो सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल एग्जिस्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल का सिंगल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन एटम का सिंगल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। I guess now it's more clear for you that what is the difference between atom and molecule। Now we will move to the next part of the chapter। Next part में, as I said, you will do the different models। So when we have to study about the models, तो basic idea जो हमें आज पता है, today we know that atom is made up of electron, proton and neutron। This we know। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और इसका नो चार्ज। दिस वी नो, आज हमें पता है। लेकिन इनिशियली इन 1860s, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में ये बात नहीं पता थी। इसको डिस्कवर किया गया धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट से। तो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो थॉमसन मॉडल आया था, जो हम आगे अभी करेंगे थोड़ी देर में। पहले मैं आपको ये समझा दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, क्या किया, ये आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था थॉमसन ने, प्रोटॉन डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, एंड दिस न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ये हम मॉडल करेंगे अभी, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उसके थ्रू वी विल स्टडी कि कैसे डिस्कवर किया इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कैथोड रे और एनोड रे एक्सपेरिमेंट में भी हम यही चीज करेंगे कि कैसे डिस्कवर किया। सो कैथोड रे और एनोड रे एक्सपेरिमेंट हम एंड में करेंगे, पहले हम ये मॉडल्स करते हैं। अच्छा, हमें जो आज पता है, जो हमें पता है एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है कहीं ऑर्बिट के चारों तरफ, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। दिस इज द प्रेजेंट मॉडल व्हाट वी हैव, जो हम एक्सेप्ट करते हैं एटम के मॉडल को। ये मॉडल कैसे आया, कैसे इन्वॉल्व हुआ, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। So we will first start from the first model, that is Thomson model। Thomson model जो है, इसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन मॉडल को हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम थॉमसन मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल? प्लम पडिंग मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि थॉमसन ने कंपेयर किया था अपने एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन से। उन्होंने कंपेयर किया था इसको अपने एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन से। कैसे कंपेयर किया? उन्होंने क्या कहा था? व्हाट ही सेड, थॉमसन सेड दैट एटम जो है वो वाटरमेलन की तरह होता है, सिमिलर इस तरीके से कि जो नेगेटिव चार्ज हैं एटम के, नेगेटिव चार्ज जो एटम के हैं वो प्रेजेंट होंगे इन द सेम वे एज द सीड्स ऑफ वाटरमेलन आर प्रेजेंट। जिस तरीके से वाटरमेलन का सीड होता है, जैसे अगर हम वाटरमेलन देख रहे हैं एज अ होल, तरबूज, तो उसमें जो वाटरमेलन का जो सीड होता है वही सीड की जगह पे नेगेटिव चार्ज होगा एटम में। दिस इज व्हाट प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। दिस इज नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां प्रेजेंट होगा नेगेटिव चार्ज में, और जो स्पेस है, जो रेडिश पार्ट होगा आपका वाटरमेलन का, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन। दिस इज व्हाट प्रपोज्ड बाय थॉमसन। थॉमसन ने जब ये मॉडल दिया तो उसके बाद दो प्रपोजल आए। एक चीज तो प्रूव हो गई हमारी इस मॉडल से, जो है नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? नेट न्यूट्रलिटी का मतलब यह है बच्चों कि
एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब यह है कि एटम के पास पूरा अगर हम देखें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों चार्जेस जो एटम में वो होंगे वो क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो दिस थिंग वाज प्रूव्ड फ्रॉम द थॉमसन मॉडल, दैट इज नेट न्यूट्रलिटी। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये प्रूव किया था थॉमसन मॉडल ने। अच्छा, इन्होंने एक और चीज बताई, ये क्या बताई कि एटम में दो चार्ज होता है, टू चार्ज पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं चार्ज पार्टिकल? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये बात जब थॉमसन मॉडल आया तो दिस वाज एक्सेप्टेड कि एटम इज मेड अप ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, एंड एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।